फिर से आप लोगों का स्वागत है वीके स्मार्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जीएसटी। सो देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स हु वांटेड टू नो व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट आर द थिंग्स इन जीएसटी। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जीएसटी के बारे में पता लगे। सो सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी क्या है? सो जीएसटी टैक्स है फॉरवर्ड गुड्स and services tax. Goods and services tax. This is the replacement of VAT. So जो हमारे इंडिया में सबसे पहले वैट चलता था, उस वैट के रिप्लेसमेंट में गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जो भी आप गुड्स कंज्यूम करते हैं या सर्विस कंज्यूम करते हैं उस पे जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड देयर आर नंबर ऑफ जीएसटी रेट्स। व्हाट आर द स्लैब्स ऑफ जीएसटी? स्लैब रेट ऑफ जीएसटी? फर्स्ट 5%, फर्स्ट 0, 5, then 18, then 28%। सो ये जो रेट्स हैं ये हमारे जीएसटी के रेट्स हैं विच आर एप्लीकेबल ऑन द कंज्यूमेबल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जीएसटी में हमें क्या मेजरली सीखना है? एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल और एज अ बीकॉम और एमकॉम स्टूडेंट वी हैव टू नो दैट हाउ वी हैव टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे how we have to, what are the differences between GSTR filings, GSTR 1, 3B, 3B and all, and what types of GSTR returns we have, that we will discuss today. Number of returns in GST. So हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के रिटर्न्स है which we have to file under GST returns. So there are number of returns, so you can note it. First GSTR 1, second GSTR 3B. Remember we are talking about the returns which we have to file. GSTR 3B. Third GSTR 4, GSTR 5, GSTR 5A, 5A, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 9 and GSTR 10. So we have 10 types of GSTR filings, GSTR returns, and in this right now for the basic level, from the basic upwards we will go. So right now for this GSTR 1, GSTR 3B and GSTR 9, not much 9 also because it will then go for next level. So right now we will cover only these two returns, which is accountant has to file every month or every quarterly according to the scheme what they have applied. Okay, so now what is GSTR 1? GSTR 1 क्या है? So फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 में हमें सिंपल सा जो भी हमारा पूरे मंथ में या क्वार्टरली इन द सेंस 3 मंथ्स में हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो हमें जीएसटीआर 1 में फाइल करनी होती हैं। जीएसटीआर 1 में क्या करना होता है? ऑल द आउटपुट्स, ऑल द सेल्स और आउटपुट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू फाइल in GSTR 1. In GSTR 1 monthly or quarterly, if you are applied for the QRMP scheme, then quarterly you have to file GSTR 1. But for QRMP scheme also आपको GSTR 1 फाइल नहीं करना है, but you have to upload your sales monthly because आप GSTR in QRMP scheme also अगर आप GSTR 3B जो है 3 मंथ्स के बाद भी फाइल कर रहे हैं, बट एवरी मंथ आपको अपना सेल जो है गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस मंथ मैंने ये सेल किया, इस मंथ मैंने ये सेल किया। ठीक है, सो व्हाट इज द डेडलाइन फॉर जीएसटीआर 1? डेडलाइन दैट इज 11th of every month, 11th of every next month.
next month. For example, if you want to file your GSTR1 for the month of December, then 11th Jan is the deadline to file the GSTR1 for the month of December. So GSTR1 हमारा ये है. What is GSTR1? All GSTR1 is the report where all is GSTR1 is a return where all the sales or output we have to file in our GST portal, so the government can see in a month how much sales we have done. Okay. Now next question. What is GSTR 2A and 2B? Now number of persons will ask कि why in this we have not mentioned GSTR 2A and 2B. So GSTR 2A and 2B पहले है क्या हम वो जानते हैं. What is GSTR 2A and 2B? This is the summary of our ITC available. So friends, GSTR 2A, GSTR 2A or 2B. What is GSTR 2A 2B? This is a return in which is automatically generated in our GST portal, which shows our available ITC. So इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, because these are the returns which we have to file, but this is a return which is automatically generated. How it will be automatically generated? For example, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैंने किसी से परचेज किया, मैंने किसी से ये जो मार्कर्स है, मैंने 10 लाख मार्कर्स परचेज किए 5 लाख रुपीज के. सो जो पर्सन है उसके लिए सेल है, मेरे लिए परचेज है. सो ही विल फाइल GSTR1 अकॉर्डिंग टू हिम. Every month he will file GSTR1 and the same will reflect in GSTR 2A or 2B as ITC for me, because in purchase I have paid GST and the same I can claim under ITC, which will available in the 2A and 2B. Now there are number of doubts. What is the difference between 2A and 2B? Why government given 2A and 2B difference? Why there are two returns 2A and 2B for ITC? So first difference is, in this ITC available according to filing. यानी मैंने जिस बंदे से परचेज किया, अगर वो 11th यानी डेडलाइन ऑफ GSTR1 अगर वो फाइल करता है तो भी वो जो ITC है वो रिफ्लेक्ट करेगा. इवन इफ ही फाइल्ड इन 15th or 20 after paying tax, after paying penalty and all 2021, it will reflect in my 2A report. But what government said, because पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ 2A रखा था, 2B पिक्चर में नहीं था. गवर्नमेंट ने कहा 2A है. अब 2A में क्या होता था कि लोग इसे जो इसकी जो पेनल्टी होती है, लोग इसको जो है बहुत हल्के में ले रहे थे. क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी फाइल कर रहे थे. बट हम लोग क्या कर, जो मैं हूँ, जैसे मेरे लिए परचेज है, मैं उसका ITC ले लेता था. तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा दैट वी आर अलाउड टू टेक ITC only from 2B, and in 2B only thus ITC will reflect which is filed under the deadline, that means कि जिसने 11th Jan तक फाइलिंग किया है सिर्फ वही ITC 2B में अवेलेबल होगा, एंड दैट ओनली आई कैन एबल टू क्लेम. उसके बाद वो कोई भी पेनल्टी भर दे, मैं उसे क्लेम नहीं कर सकता हूँ. जब मैं क्लेम कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, आई कैन क्लेम इट बट नेक्स्ट मंथ, नॉट इन दिस मंथ. तो इससे क्या होता है कि हम जैसे कई जो क्लाइंट्स जिनके हम लोग परचेज लेते हैं, हम लोग ITC में ले पाते हैं, हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है. इसलिए फिर हम लोग उनको प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू पे योर यू हैव टू फाइल योर GSTR1 ऑन टाइम. सो इसलिए गवर्नमेंट ने जो पिक्चर में 2B को रखा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B. सो व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट इज GSTR1 and what is GSTR 2A and 2B. Next, what is GSTR 3B? So GSTR 3B क्या है? So GSTR 3B is nothing but a summary of our output and input. GSTR 3B is the summary of our monthly or quarterly output or input, and input where final payable
tax we have to pay after generating payment चालान. So what is GSTR 3B? सबसे पहला हमारा GSTR 1 फाइल होता है. GSTR 1 में हम लोग हमारे सेल्स दिखाते हैं कि हमारा मंथली सेल्स इतना है. देन हमें रिको करना पड़ता है, रिकन्सिलेशन करना पड़ता है अपने बुक से टू बी रिपोर्ट का, कि टू बी मेरे फॉर एग्जांपल एज पर माय बुक्स, एज पर माय परचेसेस मैंने मंथली 10 इनवॉइसेस परचेज किए. एज पर मी 1 लाख ITC आई कैन क्लेम, बट एज पर टू बी रिपोर्ट ओनली 80,000 आई कैन क्लेम, बिकॉज क्योंकि एक वेंडर ने लेट फाइलिंग करी. तो इसलिए एवरी मंथ हमको रिकन्सिलेशन करना पड़ता है. And that reconciliation we can only able to do, that to be reconciliation we can only able to do after 14th of every month. This is for to be reco. Why? Because GSTR to be report only generated after 14th of every next month. Okay, so GSTR 3B हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम लोग GSTR 2B का रिको कर ले. तो what is GSTR 2B? GSTR 3B nothing. In GSTR 3B only GSTR 1 summary will come, but output we have to, for example 1 lakh output I have to pay as per my GSTR 1 filing of December. Now as per my GSTR 2B I can claim only ITC, I can claim only 80,000. So after sum of this 20,000 is the payable. So as per in GSTR 3B filing I have to pay 20,000 rupees GST आफ्टर जनरेटिंग द पेमेंट चालान. सो GSTR 3B क्या है? कुछ नहीं, हमारे जो पेबल है और हमारा जो ITC है उनका सम जो पेमेंट आता है वो हमें कैश और बैंक से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये टैक्स ऑलरेडी जो है क्लाइंट से कलेक्ट किया है. जो हमने सेल किया है उससे हमने क्लाइंट से कलेक्ट किया है. सो व्हाट इज द डेडलाइन फॉर GSTR 3B? डेडलाइन फॉर GSTR 3B इज 28th of every next month. यानी कि if December GSTR 3B you want to file, then 20th January is your final date or deadline date to filing, otherwise you have to pay the penalty. So this is our GSTR 1, GSTR 2A 2B and GSTR 3B. What is GSTR 9? GSTR 9 is the annual return filing. What is annual return filing? For example हम लोग सब स्कूल में पढ़ते हैं, when we are in school, so हम लोगों को जो है हर मंथ एक टैक्स देना पड़ता है, यूनिट टेस्ट और वोकल टेस्ट और वर्बल टेस्ट व्हाटएवर. हर मंथ और क्वार्टरली वी हैव टू डू द टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड ऑल. देन हमारा मंथली 6 मंथ्स और हमारा क्वार्टरली जो है हमारा एक पेपर होता है जिससे हम पास करके आगे जाते हैं. उसी तरीके से GSTR 9 हमें जो है एनुअली फाइल करना पड़ता है, जिसको फाइल करके हमारा जो फाइनल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होता है और हम उसके आगे जा सकते हैं. ठीक है. So this is the differences between GSTR 1, GSTR 2A 2B, GSTR 3B and GSTR 9. So right now we have learned about the definitions of these GSTR returns, and we will do the practical also in after some time. And जो ये other returns है धीरे धीरे हम लोग इन पे भी बढ़ेंगे. पहले हम लोग एक स्टेप चढ़ेंगे, पहले हम इनके बारे में प्रैक्टिकल सीखेंगे, इसमें और डिटेलिंग में काम करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर दिस ऑल्सो. सो आप लोग सेशन में जुड़े रहिए. हम लोग आगे चल के TDS भी करेंगे, साथ में ऑल द स्टैट्यूटरी वर्क्स वी कैन एबल टू डू, एंड ऑल द अकाउंटिंग वर्क आई कैन एबल टू मेक यू टीच. सो इसी तरह से जुड़े रहिए. तब तक जय श्री राम.